to all of you. My dear students, once again, I, Bipin Mishra, Digit English of SRPS, welcome you all to the online class of English Literature. So, my dear students, in today's class, I am here releasing part second of the chapter number 7, A Visit to Cambridge. This chapter is for class 8th and it has been taken out from NCERT book Honey Dew. So, my dear student, in this chapter, it is a story about a meeting of a two extraordinary person and both of them are disabled. Okay, name of those persons are Stephen Hawking, who is one of the greatest scientists of his time, and second one is Firdaus Kanga. As we know, Stephen Hawking was the paralyzed. He was paralyzed, and he have to be on a wheelchair for the whole of his life. Kanga was also with the same qualities. He was also not able to walk. He have to also sit on the wheelchair. So in this way, here in this chapter, it has been told that how Stephen Hawking was living, how his lifestyle it was, how he used to go from any place, one place to another, how he used to speak with others. Same way, the Cambridge, the name Cambridge is the as a metaphor for the England, and Stephen Hawking was living in a Cambridge. Here, the writer, whoever it is, writer visited to the England, and the guide who was with the writer, he mentioned the writer that he is in Cambridge, and Cambridge is known for the person Stephen Hawking. And he started telling him about the Stephen Hawking, that how Stephen Hawking is disabled person, but he is a worthy successor for the chair of Isaac Newton. It is in the university, but he is an astrophysicist and paralyzed. That is why, after listening to all these, a courage came into the mind of the writer. He thought that he must meet with the Stephen Hawking. So he called to the assistant of Stephen Hawking and he gave about the time he took the appointment to meet with him. And now I'm going to start from here. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. No, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा. उसके बहुत ही इधर उधर मतलब कि परेशान होते हुए आवाज़ या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ जो थी जिसमें वीकनेस थी, जो कंप्यूटर की आवाज़ थी, अगली सुबह ये कहती है, अगली दोपहर ये कहती है, और मेरे पास किसी भी तरीके की कोई भी चॉइस थी नहीं. ठीक है. श्योरली आई वांटेड टू सी लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस. वाकई में मैं कहना चाहता था कि किसी क्रिएटिविटी के साथ रहना, जो हकीकत है, जो सत्यता है, जो बेकार होती हुई बॉडी है, वो एक चॉइस था, एक चाहत थी. बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं हर बार जब भी उससे बात करता तो मुझे लगता कि मैं कहीं ना कहीं गुनहगार हूँ जब भी उससे मैं बात कर रहा हूँ. फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्यों? क्योंकि मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि वो जवाब दे. देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, trying to find the words on his computer with only a bit of movement left to him, his long pale fingers. वो कहाँ पर था? वो वहाँ पर था. छोटे छोटे स्विच को अपने हाथों से दबा रहा था, कोशिश कर रहा था शब्दों के कोशिश कर रहे थे शब्दों को खोजने की कंप्यूटर पर, और केवल थोड़ा सा मूवमेंट जो
उनके साथ बचा था वो ये था उनकी लंबे लंबे पतले पतले और कमजोर से अंगुलियों से। Every so often, his eyes shut in frustrated exhaustion. हर बार अचानक से लगातार ये देखा जा सकता था उनकी जो आंखें होती थी वो बहुत ही ज़्यादा थकान के साथ फ्रस्ट्रेशन के साथ बंद हो जाती। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं जब उनके अपोजिट बैठ रहा था तो मैं उनके गुस्से को महसूस कर सकता था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. वो मन जिसके अंदर बहुत ही वाइब्रेंट और एक्टिव विचार हैं जो कि जमे हुए फ्रेजेस से आए हैं और शब्दों से आए हैं और वाक्यों से आए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे एक लाश के साथ बने हुए हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है जैसे कि वो ये सोचते हो कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो वाकई में नाखुश है। मैंने कहा आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ ये सच नहीं है खुद से। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से हंसते हो? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे ये बहुत ही आनंददायक लगता है जब लोग मुझे मेरे बारे में बात करते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या तुमने कभी कभार ये परेशान नहीं हुए हो अगर कोई मेरी तरह तुम्हारे पास आता है और तुमको तुम्हारे काम में परेशान करता है तो? द आंसर फ्लैश्ड यश, फिर मेरा एक जवाब आया, हाँ हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, फिर वो मुस्कुराते हैं और उनका ये जो मुस्कुराहट था वो एक तरफा था और मुझे ये पता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना परेशान हुए या वाकई में बिना बेकार हुए, I was looking at one of the most beautiful men in the world, because at that time I was knowing that I am with the most beautiful man in the world, कि मैं इस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी के साथ बैठा हुआ हूँ। A first glimpse a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. पहली झलक यानी कि अ फर्स्ट विजन, वेन एवर वी आर गोइंग एंड वी आर मीटिंग, अ फर्स्ट विजन जब होगा, फर्स्ट पहली झलक जब उनके साथ होगी तो बहुत ही शॉकिंग होगी, बहुत ही आश्चर्यजनक होगी। इट वुड बी सरप्राइजिंग बिकॉज ही इज लाइक अ photograph. And which kind of photograph? Still photograph which is not moving, as if all those pictures of him in the magazines and newspaper have turned three dimensional. ऐसा लगेगा कि जितने भी पिक्चर्स उनके मैगजीन्स में न्यूज़पेपर्स में लगे हुए हैं वो वाकई में 3D 3 डायमेंशनल्स हो गए हैं। यानी 3 डायमेंशनल्स का मतलब कि जहाँ से भी देखो लगे वो फिगर तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। Then you see the head twisted sideways into a slump, or the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. फिर तुम देख सकते हो उस गर्दन को, उस सर को जो कि साइड की तरफ, नीचे की तरफ एक तरफा ऐसे किनारे की तरफ झुका हुआ है या ट्विस्ट हुआ है, एक साइड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ऊपर की बॉडी है, जो कि धुंधले पड़े हुए नीले से शर्ट के ऊपर की जो बॉडी है वो, नीचे का जो बेकार हुआ पैर है वो, जब तुम उनकी आंखों में देखोगे जो कि अभी भी बोल सकता है, अभी भी रुका है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कह रहे हो। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, ये बहुत ही कठिन है कहने के लिए क्या, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। आप बहुत ज़्यादा काँप जाते हो क्योंकि तुमने जो देखा है वो कभी नहीं सोच सकते देखने वाला। Before you look like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside.
इससे पहले कि तुम लालटेन देखते जिसके दीवार काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा दुबले हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, तो तुम्हारी जो झलक है वो केवल अंदर की तरफ के लाइट के लिए है। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant exists only like a case made of shadows। जो बॉडी है, जो कि वाकई में सही नहीं थी, irrelevant है, रेलेवेंट नहीं है, उसके अंदर केवल और केवल एक केस दिखाई पड़ेगा जिसके हाथ में काफी सारे शैडोज होंगे। सो डैट आई नो बिलीवर इज इन एटर्नल सोल्स। इसी वजह से मैं अंतर की आत्मा के ऊपर बिलीव नहीं करता। नो डैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज। यही आपको जानना चाहिए, ये वही है जो हम लोग हैं। एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी। और जो भी हैं वो कोई एसेंशियल नहीं, बहुत बल्कि एक्स्ट्रा या को डेकोरेटिव एसेसरी है। What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier। मैंने उनसे पहले ये सवाल पूछा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है अगर कोई डिसेबल्ड हो, जो अपाहिज हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मैं नहीं सोचता कि कोई भी चीज़ें अच्छी होती हैं अगर हम अपाहिज हैं। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। मैंने कहा कि आप ये डिस्कवर कर पाओगे, ये खोज पाओगे कि दुनिया में कितनी ज़्यादा दया है। यस ही सेड इट वाज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट ही कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और नो टोन। हाँ, उन्होंने कहा ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था उनकी आवाज़ का, जो उनका आवाज़ बदलता था, क्योंकि वो कोई भी इन्फ्लेक्शन, कोई भी टोन में बदलाव नहीं भेज सकते थे। ऊपर नीचे जैसे कि राइज एंड फॉल वॉइस के स्पीकिंग में हम लोग जब बात करना होता है प्यार से, हाँ ये करोगे ना, तो आवाज़ को किस तरीके से हम लोग चेंजिंग करते हैं उसी तरीके। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी। और मैं ये आप लोगों को ये भी नहीं बता सकता कि कितने शक्ति के साथ वो मुझसे सहमत हो गए। ओके। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रीच टू वॉच द टाइम। हर बार जब भी मैं अपनी चेयर पे बैठता या फिर अपने कलाइयों को घुमाता समय देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं यही चाहता था कि हमारे जो 30 मिनट के, हर एक 30 मिनट के बीच का जो एक एक मिनट का समय है उसकी गिनती रहे। I felt a huge relief and exhilaration in possibilities of my body। मैं अपने बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती, काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस कर पा रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड एंड दैट आई वुड नेवर वॉक और नेवर स्टैंड। ये कितना छोटा सा मतलब था उससे कि मैं जितना पहले अब कभी चल नहीं सकूँगा या कभी खड़ा नहीं हो सकूँगा, इनसे कितना छोटा सा चीज़ था। So, my dear student, today I have completed till here. In the next lecture, we would be moving from the next page number 99, and I would be explaining you. So, this chapter is being written by Firdos Kanga, and only one page is left. So, in the next lecture, I would be explaining you. Then we will be coming to the question and answer. Thank you for today. Watch the lecture till end.